A very good evening to all of you. And on behalf of entire this fraternity, I express my sincere gratitude and thanks happily and jubilantly, President, Vice President, and all council members for making very elaborate arrangements, and every member is very happy these 3 days. Members, you see the profession. We got independence in 1947. And in 1949, before our constitution acceptance, this Profession Act has come. And here, let me give my reading speech first, then I will go. Esteemed members of the Institute, a warm welcome to each one of you. Today is not just a day, it is a celebration of remarkable journey that spans 70 years of excellence, commitment, and contribution to the field of accounting profession. As we are celebrating the 75th year of ICA, it's imperative to take a moment to acknowledge the significance of momentous occasion. 3/4 of century ago, a vision was set in motion, and today we commemorate the Institute's resilience, growth, and unwavering commitment to the highest standards of professional integrity. Let us briefly traverse the historical landscape of ICA, a journey marked by key milestones, formidable challenges, and trumps that have shaped this institute into the distinguished entity it is today. From its inception to navigating the complexities of dynamic profession, ICA journey is a testament to ability to evolve and thrive. We are having more than 164 branches, 5 regions, and across the world, we are having 40,000 members, 48 overseas chapters, 33 representative offices in 47 countries. ICA success story is deeply rooted in its value, integrity, independence, and excellence. The Institute legacy of profession. Looking ahead, ICA remains in the forefront of the profession with a forward-thinking vision. Today, we explore new initiatives, programs, and strategies that position ICA as a torchbearer in the evolving accounting landscape. Every 10 years, we are revising our syllabus, updating the world requirement, regulators, and other stakeholders. It is our commitment to shaping the future of the profession that sets the tone for the next chapter of excellence. 20 years back, profession means calculation. Later, we came to explain non-profit items also. Now, profession means profit, people, and planet. We are honored to have with us today Sri Manoj Mutisha, a distinguished speaker and a great writer and poet, who will play a pivotal role in weaving together the narrative of ICA's 75-year journey to storytelling and artistry. His insights will undoubtedly add depth and emotion to the tale of this venerable institution. One thing I want all members, we are extremely highest profession and everybody feel and everybody giving that respect. So my request all the members, confined to this profession, do as Ekalavya's this profession concept, not involved into other business activities. Lord Krishna in Gita says, Sayan sadam mogina, sadanma nidanam saya, paradamma bayaha. The line which you have chosen, whatever difficult, dark, don't leave it, pursue. Definitely a day will come, you will shine. Like that, this profession has to be going forward, not only elected council members, regional members, branch. Each member of this profession is a supporter, is a brand ambassador of the profession. With this, I once again congratulate President, Vice President, who has taken a lot of pains for the last 2 months, particularly along with them, the council members also. Indeed, it is a heartfelt gratitude to each one of you and all those who have contributed to ICA success. Let us set the stage for an enlightening and celebratory session as we delve into the heart of ICA's 75-year legacy with pride and participation for the future. Friends, I am from the state of Andhra Pradesh. Generally, in our
program families always they quote one poem which I want to share with you and translate into English. వినదగును ఎవ్వరు చెప్పిన వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగును కనికెల్ల నిజము తెలిసిన మనుజుడు పో నీతిపరుడు మహిళ సుమతి. People say many things, many issues about institute, about profession, about many things. But you realize, you think your soul, what is happening, how we are contributing the nation, exchequer. This, if you think, you will feel proud yourself that you are a contributor to the nation, you are helping this nation, not only the nation, 40,000 people across the world, they are there. We are contributing the human race. With this, we should feel proud and continue this profession to make a great success of the future. Thank you, one and all. Thank you. Thank you very much, Honorable Past President, Institute of Chartered Accountants of India, CAM Devaraja Reddy sir. And now we're all set to listen in to Mr. Manoj Muntashir Shukla. Last week, he also released his new book, Jo Meri Nas Nas Mein Hai. So we extend our best wishes to him. Today is Constitution Day. Go back in history. It was on 26th of November, 1949, that the Indian Constitution was adopted. And earlier than that, on the 1st of July, 1949, our Institute of Chartered Accountants of India was created. It's been 75 years. This has been an illustrious journey. And today, Mr. Manoj Muntashir Shukla, through his magic of words, through his art of storytelling, will create nostalgia and help us understand different phases. Whatever we celebrate today of ICI is because of this journey of 75 years. So amidst a big round of applause for everyone who's contributed to ICI, please welcome the eminent lyricist, songwriter, motivator, Mr. Manoj Muntashir Shukla. बस lyrics के लिए हिंदुस्तान स्टार श्री मनोज मुंताशिर को प्रोजेक्ट कमल for the best lyrics for motivational lyrics for the song to depict the inner strength of the national champion. ये देश है अलबेलों का मतवाले यहाँ रहते हैं मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहाँ रहते हैं दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं मुल्क मरहूम का ये यहाँ शिवाजी डोला था मुगलों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था शिवाजी महाराज की जय प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी हुई इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ बढ़ सको तुमको पे रखना मेरे दोस्त मेरे लिए मत लड़ना
जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएगा। की छाती में विजय का भगवान नहीं काटते हैं उसका। सोने देंगे वतन नाम जिएंगे वतन मेरी शान पसंद को कोई धर्म है कोई धर्म से ICAI बहुत 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 अभिवादन आपका और आपको बहुत बहुत बधाई आपके डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए। मैं विशेष तौर पे आभार व्यक्त करना चाहूंगा अनिकेत तलाती जी का, रंजीत अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इतनी फैंटास्टिक, इतनी बढ़िया ऑडियंस के सामने आऊं और कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं। ये जो आपकी काउंसिल है इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके काउंसिल के बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया और जो जोश देखा मैंने, जो उत्साह देखा मैंने, उसने मेरी हिम्मत दुगनी कर दी। मैं जानता हूं कि आज मैं इस देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स के सामने बोल रहा हूं। ट्रस्ट मी, ये आसान नहीं है। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, जिसको आप मां का दर्जा देते हैं, आपकी मां, आपकी पूजनीय माता जी 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाली है। मेरी खुद की मां 75 साल की हो चुकी है, पिछले साल ही उन्होंने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। और मैं तजुर्बे के आधार पर, एक्सपीरियंस ही कह सकता हूं कि 75 साल की होते होते मां और कीमती हो जाती है, और अनमोल हो जाती है, और खूबसूरत हो जाती है, और जरूरी हो जाती है हमारे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। और कितने जज्बाती हैं आप लोग अपने इंस्टीट्यूट को लेके, ICAI को लेके। आज राज चावला जी कहाँ हैं? वहां बैठे, देखिए सामने बैठे। राज चावला जी सुबह मुझसे मिलने आए मेरे कमरे में। इन्होंने बड़ी एक इमोशनल, बड़ी जज्बाती बात मुझसे कही। इन्होंने कहा, मनोज जी, जो मेरा सरनेम है, जो मेरे पिता की दी हुई पहचान है, वो मैं अपने नाम के बाद लगाता हूं। चावला, राज चावला।
लेकिन आईसीएआई, मेरी मां ने जो मुझे पहचान दी है वो मैं अपनी नाम के पहले लगाता हूं, आई एम सीए राज चावला। सीए होने पे आपको जो गर्व है, आपका जो अभिमान है, आपका जो स्वाभिमान है, ईश्वर उसको हमेशा हमेशा ऐसे ही कायम रखे। दया जी सामने बैठे हुए हैं, ये मुझे कहते हैं जी मत कहिए, सिर्फ दया कहिए। मैं तकरीबन 4 महीने पहले इस मंच पे आने वाला था आपसे संवाद करने, आपसे बात करने, लेकिन मेरे और आपके बीच में कई दरवाजे बंद हो गए। फिर बंद दरवाजे कौन तोड़ता है? दया। इनको भी कहीं से आकाशवाणी, दया दरवाजा तोड़ दो। इन्होंने कई दरवाजे तोड़ दिए और मुझे कहां तक लेके आए। देखिए, ये एक बड़ा सुखद संयोग है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश ने भी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, अमृत काल जिसको हम कहते हैं। ये संयोग भी है और मैं समझता हूं एक संदेश भी है कि 75वां साल कोइंसाइड कर रहा है आपका भी और हमारे देश का भी, यानी देश का भी अमृत काल शुरू हो चुका है और आईसीएआई का भी अमृत काल शुरू हो चुका है। अगले 25 साल हमारा भारतवर्ष और आपका मेरा आईसीएआई, ये दोनों अमृत काल में जीने वाले हैं और ये एक मौका है हमारे पास पूरी दुनिया को बताने का कि हम कितने काबिल हैं, हमारी क्या सलाहियत है, हमारा क्या जोश है, क्या ताकत है, क्या दम है हमारे अंदर। याद रखिएगा, यही समय है, सही समय है। जब मैं अभी वहां से आ रहा था और मैंने बड़ी तारीफों भली भरी तालियां सुनी, हजारों बार सुन चुका हूं, लेकिन आज भी तालियां बहुत अच्छी लगती है। अगर झूठ बोलूं कि नहीं अब तो आदत पड़ गई है, सच बता रहा हूं आदत अब तक नहीं पड़ी। लेकिन एक डिस्क्लेमर डालना मैं जरूरी समझता हूं कि शब्द और वाणी दोनों मां सरस्वती की देन है, ईश्वर की देन है। लिखने और बोलने वाले का उसमें कोई योगदान नहीं है, कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। मैं भी तभी तक बोल पा रहा हूं, मेरे शब्दों में भी तभी तक उजाला है जब तक वहां से करंट आ रहा है। सच यही है साथियों कि तारीफों के लायक ना शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूं। मैं देख रहा हूं बहुत सारी कुर्सियां भर चुकी हैं, बहुत बड़ा हॉल है, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा हॉल है, लेकिन फिर भी आपकी मौजूदगी यहां दमदार तरीके से बोल रही है। इस कोने से उस कोने तक, पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक आपने कुर्सियां भर दी है। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को अच्छा लगता है। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे साथियों वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक जवान को, एक फौजी को होती है। मेरी बोई हुई फसल भी आप है, मेरे जीते हुए मेडल भी आप है। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में तालियां बजा लें आप। अच्छा, आपका अभिनंदन करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है मेरे पास, बड़ी पर्सनल, बड़ी जाती वजह है। मैं बचपन से ही विनर्स की ओर, अचीवर्स की ओर, गो गेटर्स की ओर, जिन लोगों ने लाइफ में कुछ बड़ा किया, उनकी ओर मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ करता था। आज मुझे कितना गर्व है इस बात पे कि मैं उन लोगों के सामने बोल रहा हूं जिन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कठिन, सबसे चैलेंजिंग एग्जाम क्लियर किया है यहां तक पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो मुझे इस शो के बाद सोशल मीडिया पे देखेंगे, आप लोग रील्स पोस्ट करेंगे, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। आप तो खैर ये इंफॉर्मेशन जानते ही हैं, ये कैमरा कहां है, वहां है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष की जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली का सबसे कठिन इम्तिहान अगर कोई है तो वो सीए का एग्जाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम है। हजारों लोग हर साल इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ 10 से 12% क्लियर कर पाते हैं, सिर्फ 10 से 12%। ये सक्सेस रेट, ये सक्सेस रेशियो अगर आप मैच करेंगे तो आपके ऊपर एक भेद खुल जाएगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि भाई
फिल्म स्टार बनना बहुत चैलेंजिंग चीज है। क्रिकेटर बनना, देश के लिए खेलना, टॉप 11 में खेलना बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म स्टार बनने से और क्रिकेटर बनने से भी कहीं चैलेंजिंग है सीए बन के दिखाना। तो आज ये जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं। आप ही मेरे थलाइवा हैं। एक बार फिर तालियां आपके लिए। एक परिभाषा देके जा रहा हूं मैं आपको सीए की। बहुत सिंपल ये चीजें होती है ना, वो हमें लगता है हम जानते हैं, क्योंकि ये वर्ड, ये टर्म, ये प्रोफेशन हम इतनी बार सुनते हैं कि हम इसकी गहराई में झांकना, इसकी गहराई में उतरना भूल जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डेफिनेशन जो मेरी समझ में आती है, मैं आपको बता के आपको दे के जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप नोट करके रखें और अपनी पहचान आज से यही बताएं कि जो बाती जला के दुनिया में उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं। जो बाती जला के दुनिया में उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं, और जो अपनी जवानी जला के देश का खजाना भरते हैं वो सीए कहलाते हैं। जो बाती जला के उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं। दिवाली अभी गई है। जो बाती जला के उजाला करते हैं वो दिए कहलाते हैं, और जो अपनी जवानी जला के देश का खजाना भरते हैं वो सीए कहलाते हैं। इस प्रोफेशन से जो मेरा पहला वास्ता, मेरा पहला ताल्लुक हुआ, वो तकरीबन शायद 22 साल पहले है, जब एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद फिल्मी दुनिया में मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन साहब ने मुझसे केबीसी लिखवाया। मैं तब केबीसी लिखा करता था, कौन बनेगा करोड़पति, बहुत सारे टेलीविजन के शोज लिखे। थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हुए तो मुझे ये कहा गया कि भाई पैसे सिर्फ लेने नहीं होते हैं, देने भी होते हैं, सरकार के खजाने में जमा भी करने होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये भी है, ठीक है। तलाश हुई एक सीए की, शर्मा जी नाम के एक सीए मुझे मिले। मैं आज तक उनका चेहरा नहीं भूला। शर्मा जी आए और पहली मुलाकात में, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, मैंने लाइफ में कभी पैसे नहीं देखे थे। मैंने शर्मा जी से कहा, मैंने कहा शर्मा जी मेरे थोड़ा पैसे बचा लीजिएगा। शर्मा जी ने छूटते ही जो मुझे कहा वो मैं आज तक नहीं भूला। बोला देखिए सर, फीस तो मैं आपसे लूंगा लेकिन सेवा मैं देश की भी करूंगा। तो मैं बचाऊंगा उतना ही जितना जायज तरीके से, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से बचना चाहिए। मैं अपने और आपके फायदे के लिए देश का नुकसान नहीं करूंगा। उस दिन से शर्मा जी मेरे हीरो हो गए और मैं समझ गया कि इस प्रिंसिपल के साथ, इस उद्देश्य के साथ जो लोग जीते हैं वो कितने बड़े हैं, वो कितने हीरोइक हैं और उनका कितना सम्मान होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बार जब सोचता हूं, जब मैं पैनल रख के देखता हूं, तो मुझे लगता है कि एक जो फौजी सरहद पे खड़ा हुआ है वो गन, ग्रेनेड और गट से देश के लिए लड़ता है, और एक सीए, आप लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आप कलम, कागज और कैलकुलेटर से देश के लिए लड़ते हैं। यानी एक बात तय है कि आप भी एक तरह के फौजी है। आपके जिस्म पे वर्दी नहीं है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि जिसने वर्दी नहीं पहनी वो देश के लिए लड़ नहीं सकता। ये कहां लिखा हुआ है कि जो फौजी बूट पहन के सरहद पे नहीं गया वो अपनी मिट्टी से मां की तरह प्यार नहीं कर सकता। जिस्मों पे वर्दी, न कंधे सितारे, न झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे, पर जानिसारी की जब बात होगी आगे मिलेंगे कतार में हम, तो क्या जमीन पे रहे ना रहे मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले जो माटी को मां कहते हैं।
साथियों, आपके दम पे हमारा ये देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि 2029 तक आप ही के दम पे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते दिखाएंगे। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हम गरुड़ बन चुके हैं। हमने कंधों पे पंख उठा लिए हैं और सैकड़ों आसमान अपने कंधे पे लेके खड़े हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। और हमारी रफ्तार तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्नि पुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हाँके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचई और पराग कहां से लाओगे? हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, झोपड़ों के चिराग, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 140 करोड़ कोहिनूर बाकी है। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आकाश तक चमचमाएंगे। 280 करोड़ बाजू है हमारे। आओ, हमारी ताकत आजमाओ, हम हिंदुस्तानियों को। अच्छा साथियों, आज एक कमाल की बात हुई। जब मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरा, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम ग्लोपैक तो ऑलरेडी सबको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो एयरपोर्ट के कई ऑफिसर से जो देखते हैं फोटो खिंचाने आ जाते हैं। तो एक साहब मेरे पास आए और बोले, अच्छा आप ग्लोपैक के लिए आए हो, शान भी आए थे? मैंने कहा हाँ हाँ, शान भी आ रहे होंगे बिल्कुल। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ सर। मैंने कहा बताइए। बोले आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन आज आप जहां जा रहे हैं ना, वहां इंटरनेशनल चैप्टर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो एक काम कीजिएगा, आज थोड़ा इंग्लिश में बात कीजिएगा, बात दूर तक जाएगी। मैंने कहा भाई साहब, एक बात मैं बताऊं आपको, इंग्लिश से मेरा विश्वास उसी दिन उठ गया था जब 10वीं कक्षा में मुझे निमोनिया हुआ और मुझे पता चला कि निमोनिया की स्पेलिंग एन से नहीं, पी से शुरू होती है। और फिर भी आप अगर चाहते हैं कि इंग्लिश बोली जाए तो एक बात बताइए, पढ़ा तो मैं भी कॉन्वेंट में हूं, बोल लूंगा इंग्लिश में, लेकिन वो जो हिंदी वाली धार है, वो जो हिंदी वाली धमक है, वो जो हिंदी वाला तेवर है, वो जो हिंदी वाली गरज है, वो मैं इंग्लिश में लाऊंगा कहां से? तो देखिए, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन कहीं होने वाले हैं, कहीं हो चुके हैं, कहीं हो रहे हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई इंग्लिश में दे, यू नो व्हाट, माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। हाँ तो भाई कौन सी बड़ी बात हो गई, योर अंकल इज अ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली। यही बात अगर हम हिंदी में कह दें, जानते बेटा, चाचा विधायक है हमारे। अब आया बात में वजन, अब पता चला हिंदी क्या है। अच्छा,
इंग्लिश तो मैंने फिर भी, छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ पला बड़ा, लेकिन मैंने वक्त के साथ इंग्लिश सीख ली, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जीएसटी मैं पिछले साल तक नहीं समझ पाया था। मेरे मेरे सीए से मैं, वो जब भी आता चेक्स करोड़ों के भरवा के, मैंने कहा भाई वो कहां ले जा रहे हो? सर जीएसटी है। और मैं उससे हर बार कहता भैया मुझे समझा तो दो कि ये जो मैं भर रहा हूं ये मैं भर क्या रहा हूं। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उसने मुझसे बोला, जिस बहारे हिजरा बेचारा दिल है। मैंने कहा हाँ तो? बोले सर बिना समझे वो गाना आप 25 साल से गा रहे हो, बिना समझे जीएसटी नहीं भर सकते? अरे इतना ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे देश के पास है, मोदी जी गलत थोड़ी नहीं है। इस बात पे मैं टोटली कन्विंस हो गया। मुझे भी विश्वास है कि मोदी जी गलत थोड़ी लेंगे। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाएं आप सब लोग। आज आपने मुझे जिस उम्मीद से यहां बुलाया है, मैं आपको वो सब सुनाऊंगा, आपकी सारी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। वो सब जो आप इंडियन आइडल पे, सारेगामा पे, इंडियाज गॉट टैलेंट पे और देश के बड़े बड़े टेलीविजन शोज पर मुझे बोलते हुए सुनते हैं, उस बारे में बात करूंगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे आपके अलावा भी देखने वाले हैं सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, कुछ बातें उनको बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। हमारे देश में टैक्स को लेकर बड़ी गलतफहमियां हैं। सबको लगता है जैसे हम कोई एहसान कर रहे हैं सरकार पे, देश पे या अपने सीए पे। सीए बेचारा हमसे आके टैक्स भरवा के ले जाता है, वो उसकी बैंक में थोड़ी जा रहा है। लेकिन आमतौर पे ये होता है, अरे यार आया ले गया। मैं आपको टैक्स क्यों जरूरी है और टैक्स से क्या होता है, 5000 साल पहले मैं आपको ले जाता हूं। महाभारत काल में एक दिन भगवान कृष्ण की उंगली में जरा सी चोट लग गई और खून बहने लगा। द्रौपदी वहीं कहीं आसपास थी, उन्होंने कन्हैया की उंगली से बहता हुआ खून देखा तो फौरन भागी भागी आई, अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा और उनकी उंगली पे लपेट दिया, बहता हुआ खून रुक गया। थोड़े दिनों बाद इस घटना के तार कहां से जुड़े? हस्तिनापुर की राजसभा, जहां क्रूर नीच दुशासन द्रौपदी की चीर उतार रहा था। पितामह बैठे हुए थे, गुरुजन बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब बैठे हुए थे। कोई द्रौपदी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कन्हैया को याद किया, बोली सखा अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। भगवान कृष्ण ने जब द्रौपदी की पुकार सुनी, उनकी फरियाद सुनी, तो उनको क्या याद आया? वही साड़ी का एक फटा हुआ कोना, जरा सा कोना। उस जरा से साड़ी के कोने के बदले भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की चीर को आकाश से भी बड़ा विस्तार दे दिया। दुशासन के हाथ द्रौपदी की चीर खींचते खींचते थक गए, लेकिन वो क्रूर महासती द्रौपदी का एक नाखून भी निर्वस्त्र नहीं कर पाया। तो वो जो एक साड़ी का कोना फाड़ के कन्हैया की उंगली पे बांधा था द्रौपदी ने, वो था टैक्स। और उस टैक्स के बदले जो पलट के मिला वो आकाश से भी विशाल चीर थी। जब हम सरकार के खजाने में जरा सा टैक्स भरते हैं तो होता क्या है? हमने तो मुट्ठी भर पैसे दिए, लेकिन उस मुट्ठी भर पैसों के बदले हमारे घर के सामने से गुजरने वाली कच्ची सड़क फ्लाईओवर में बदल जाती है। उस मुट्ठी भर पैसे के बदले, देखिए 3 किक्स होती है पैसे में, 3 तरह के मजे, 3 तरह के सुख होते हैं पैसे में। पहला सुख है पैसा कमाना, और ये बहुत बड़ा सुख है। इस दुनिया में जो भी ये कहता है कि पैसा खराब चीज है या नहीं कमाना चाहिए, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसकी राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बिल्कुल पैसा कमाना चाहिए, पैसा जम के कमाना चाहिए। पैसा कमाने में बड़ी किक है, लेकिन ये अकेली किक नहीं है। पहली किक पैसा कमाना, दूसरी किक पैसा अपने ऊपर खर्च करना और अपनों के ऊपर खर्च करना, और तीसरी सबसे बड़ी किक है पैसा उन पे खर्च करना जिनको आप जानते भी नहीं, जो जरूरतमंद है, जो अजनबी है, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, उनके लिए भी आप कुछ कर दें। तो जितनी बार आप सरकार के खजाने में टैक्स भरते हैं, उतनी बार किसी गरीब की थाली में रोटियां रख रहे हैं।
किसी जरूरतमंद बच्चे के कंधे पे स्कूल का बस्ता टांग रहे हैं, किसी बीमार को आप अस्पताल भेज रहे हैं। ये होता है आपके टैक्स से, और इसलिए टैक्स भरना देशभक्ति है। और इस देशभक्ति में जो आपकी मदद करते हैं हमारे सीएज, उनका सम्मान जितना किया जाए उतना कम। अभी बहुत सारी लवली लेडीज मुझे पीछे मिली, कुछ फोटो सेशंस हुए, यहां भी बैठी हूं। मैंने एक बात हमेशा देखी है कि ये महिलाएं हमारी भाभी, हमारी पूज्य भाभी, जब मैं कृष्ण की बात कर रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान होती है। ये कृष्ण से बड़ा प्यार करती है। हर जन्माष्टमी बच्चे को मोर पंख लगाएंगी, मुकुट लगाएंगी, कन्हैया बनाएंगी, लेकिन भैया में इतने से किशन कन्हैया नजर आ जाए तो भैया को मोर पंख करना चाहती है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भगवान कृष्ण का भी प्यार अधूरा रह गया। आप तो खैर पढ़ते रहे, लिखते रहे, रात भर जागते रहे, आपके पास तो इश्क के लिए समय नहीं था, लेकिन जिसके पास समय था, जो बांसुरी बजाते रहे, जो रास रचाते रहे, उनका भी प्यार अधूरा रह गया। उनको राधा कभी मिली। लेकिन ये भी सच है कि भैया प्यार अधूरा ही ठीक है। कभी कभी ये बैलेंस शीट टैली ना हो ना, यही सही है। अधूरा प्यार क्या करता है? अब मैं नीचे आ रहा हूँ, कैमरा मेरा है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है थोड़ा अपडेट बात होनी चाहिए। अधूरा प्यार क्या करता है? अधूरा प्यार जो है वो पहाड़ों पे जाता है, समंदर किनारे टहलता है, गजलें सुनता है, महफिलें जमाता है, और जो प्यार पूरा हो जाता है वो बाजार से धनिया खरीद रहा होता है। अभी तो भाई साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इंग्लिश में बोलिएगा। उनकी एक बात से मैं सहमत हूं, बड़ी रैशनल लैंग्वेज तो है इंग्लिश। पूरा, हम पूरे प्यार की बातें करते हैं, पूरा के लिए इंग्लिश में मैम दो वर्ड्स हैं, कंप्लीट और फिनिश। अगर आपको सही लाइफ पार्टनर मिल गया तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। जब गलत लाइफ पार्टनर मिल जाए, फिनिश। अच्छा, एक और तजुर्बे से बता रहा हूं मैं, अगर कभी ऐसा हुआ कि सही मैंने आपको गलत वाले के साथ देख लिया तो आपकी लाइफ कंप्लीटली फिनिश। एक बात बताऊं मैं, ये बीवियां जैसा प्यार चाहती हैं साथियों, ये कोई बेरोजगार निकम्मा निठल्ला ही कर सकता है। नहीं, सही सही कह रहा हूं, एक्सपीरियंस ही कह रहा हूं मैं। आप बताइए, सीए जिसके लिए 20 घंटे दिन पे कम पड़ते होंगे, अब आप कैसे प्यार करेंगे और कितनी देर आप बाबू सोना करेंगे? अच्छा, बाबू सोना तो फिर भी ठीक है, ये तो शायद मेरे आपके जमाने की चीज है। जेनजी में प्यार का एक्सप्रेशन ही बदल गया। मेरा बेटा है 13 साल का, 14 साल का, तो मैं कभी कभी देख जिस तरह की बातें वहां फोन पे हो रही होती हैं, अब बाबू सोना नहीं है, नया एक्सप्रेशन जेनजी का, जेन नेक्स्ट का, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। बताइए बेटा, तुम 18, भगवान से डरो। और बायोलॉजी भी कोई चीज है ना, बट द क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। मेरे मन में पत्नियों का बड़ा सम्मान है, वो किसी की भी हो। मां बाप हमारे पहले गुरु होते हैं। शर्मा जी बैठे हुए अंकल,
माँ बाप हमारे पहले गुरु होते हैं और पत्नी आखिरी, क्योंकि उसके बाद ना किसी गुरु की जरूरत रह जाती है और ना कोई ज्ञान भैया काम आता है। लेकिन साथियों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी न करें, आप प्यार न करें। प्यार करना ताकि ये जिंदगी जीने के काबिल बन जाए। प्यार करना ताकि ये जिंदगी जीने के काबिल बन जाए। प्यार करना ताकि सीने में रखा हुआ पत्थर धड़क उठे और दिल बन जाए। प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको। प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी हुई इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ मर सको। सबसे बड़ी जमा पूंजी अगर हम कमा सकते हैं इस जीवन में, सबसे बड़ी दौलत, तो वो रिश्तों की दौलत है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात सुनने में अच्छी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात सुनने में सच्ची है। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक बहुत बड़े टर्मोइल से, बहुत बड़ी आपदा से, बहुत बड़े केओस से गुजरा। पता नहीं कितने लोग जो मुझे दोस्त लगते थे वो अजनबी बन गए। मैंने देखा कि परिवार, फैमिली, मेरे 85 साल के बाबूजी, मेरी मां मजबूत पिलर की तरह मेरे साथ खड़े रहे। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कई बार कह चुका हूं कि अगर रिश्तों का मूल मंत्र सीखना है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों की वैल्यू क्या है। सर को मेरा भी प्रणाम। सर, थैंक यू सर। तो बहुत बार मैं कह चुका हूं, तो कहीं हमें और दूर झांकने की, जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो रामचरितमानस है ना, वो तो है ही, हम सबके घर में है। बस एक बार उसके पन्ने पलट के देख लीजिएगा, एक बार राम के चरित्र में उतर जाइएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और रिश्ते निभा के हमें मिलता क्या है। कौन है राम? अगर मैं बहुत एक शॉर्ट में 2-3 लाइनों में बताना चाहूं जो मुझे समझ में आते हैं, वैसे तो खैर राम की महिमा कोई क्या बताएगा। मुझे लगता है कि राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेके संसार के सबसे बड़े अत्याचारी से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण के सराहने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं कि या तो आज मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद के यहीं सो जाऊंगा। 2023 में मैं राम की बात क्यों करता हूं? और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। 2023 में मैं त्रेता युग के राम की बात इसलिए करता हूं क्योंकि आज 2023 में हम मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं और त्रेता युग में भगवान राम ने जीवन में मंगल ढूंढ लिया था। सोचने वाली बात है। और सोचिएगा आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने चांद की सतह पे पांव रख दिए लेकिन बुजुर्गों की दी हुई संस्कारों की जमीन हमारे पैरों के तले से खिसक गई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम अंधेरा, मैं दिख रहा हूं जी, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम सिक्कों से खुरश खुरश कर अपनी हथेलियों पर खुशियों की लकीर बनाते रहे और उसी हथेली से जिंदगी रेत की तरफ फिसल गई। क्या खोया है हमने और क्या पाया है इस कामयाबी की दौड़ में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बताना नहीं चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता आपको जो आप पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन याद दिलाना मेरा रोल है, मेरी भूमिका है, मेरा काम है और मेरा धर्म है कि मैं आपको याद दिलाऊं। मैं सिर्फ 3 मिनट के लिए आपका ध्यान उस स्क्रीन पे चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप ये जरा सा वीडियो देखें और आप सोचें कि हमने क्या खोया, क्या पाया। मैं फिर लौट के आऊंगा, यहीं खड़ा हूं। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है पर न ठहराव है न गहराई है। हमने बैंक अकाउंट में कई शून्य जोड़ लिए लेकिन अपने शून्य होने का एहसास घटा नहीं पाए। ट्विटर पे ब्लू टिक ले लिया पर लाइफ से रेड फ्लैग्स हटा नहीं पाए। आसमानों से जुड़ने की जिद में हम अपनी जमीनों से टूट गए। सफलता और सुख में अंतर है, कामयाबी और खुशी में फर्क है, ये समझाने वाले बुजुर्ग कहीं पीछे छूट गए।
पेंट हाउस बना लिया, लेकिन इतनी फुर्सत कहां कि बच्चों के साथ रेत के घरौंदे बना पाए। कलाई पर 4 लाख की घड़ी पहन ली और वक्त इतना भी नहीं कि 4 पल अपनों के साथ बिता पाए। आज हम बिल गेट्स और जो बाइडेन को तो पहचानते हैं, पर अपने पड़ोसी को नाम से नहीं जानते हैं। और सोच इतनी बदल गई है कि दादा पत्थर को भगवान मानते थे, हम भगवान को पत्थर मानते हैं। गुरु की जगह गूगल को दे दी। जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी तो आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है और समझदारी कम है। रिश्तों की जायदाद वक्त ने हड़प ली और हम प्रॉपर्टी के पेपर संभाल के खुश हैं। दादी की स्टोरीज हमारे इंतजार में सो गईं और हम इंस्टा पे स्टोरीज डाल के खुश हैं। जो लॉकर में बंद नहीं होती वो भी दौलत है। ये जरा सी बात हम खुद को समझा नहीं पाए। मून और मार्स तक जा पहुंचे, लेकिन सगे भाई से मिलने दूसरे शहर तक जा नहीं पाए। बड़े बड़े अरमान पूरे कर लिए, छोटी छोटी आरजुएं हाथ मलती हैं। घर से निकलते हुए कभी माँ के दुआएं साथ चलती थी, अब ब्लड प्रेशर की दवाएं साथ चलती हैं। एक वो भी दिन था जहां थक गए वहीं सो गए, और आज लाखों का मैट्रेस है लेकिन गहरी नींद में सोए महीनों हो गए। दिखावा ऐसा कि हम टूटे हुए पैरों में ब्रांडेड जूते कसते हैं, और अदाकारी ऐसी कि अंदर जितने ज्यादा आंसू हैं बाहर उतना ही जोर से हंसते हैं। इस डिजिटल दुनिया में कहां ढूंढें, माँ की चिट्ठियां कहां चली गईं, बाबूजी के तार कहां खो गए। फेसबुक पर 4000 फ्रेंड्स हैं, पर जो एक आवाज पर दौड़े चले आते थे वो 4 यार कहां खो गए। कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, रिश्ते लॉस में डूबते जा रहे हैं। एक एक करके पूरा आसमान खो गया, फिर भी ये धोखा कि हम चांद कमा रहे हैं। ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें जितना शोर है उतना ही सन्नाटा, जितनी भीड़ है उतनी ही तन्हाई है। एक वजूद 1000 टुकड़ों में बंट गया, दिल कहीं है, दिमाग कहीं और होश कहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, और आज सब कुछ है पर कुछ नहीं है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो सब कुछ था, पर कुछ नहीं है। साथियों, शायद यही डाइकोटमी है जिंदगी की। बात बहुत देर से समझ में आती है। पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है तब जाके कुछ खेल समझ में आता है। बचपन में गीत सुना था, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। फतेहपुर सीकरी आप में से अगर कुछ लोग गए हो, मेरा जाना हुआ कुछ दिनों पहले। फतेहपुर सीकरी में मिडिवल एरा का एक ब्रिज है, शायद अकबर का बनवाया हुआ है। उस ब्रिज पे एक कमाल की बात लिखी हुई है। ब्रिज पे लिखा है, द वर्ल्ड इज अ ब्रिज, पास ओवर इट बट बिल्ड नो हाउस अपॉन इट। पुल गुजरने के लिए होते हैं, ठहरने के लिए नहीं होते। हमारी मुश्किलें, हमारी दुविधाएं तब शुरू होती हैं जब हम ये बात भूल जाते हैं, और हम इस दुनिया में जो कि एक पुल है, हमें लगता है हम तो हमेशा के लिए यहां हैं, हम तो कभी जाने वाले ही नहीं हैं। हम भूल जाते हैं कि आज आग है, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। आज आग है, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। ना मेरी आवाज हमेशा गूंजेगी, ना सुनने के लिए हमेशा तुम होगे। तिनका तिनका पड़ा मिलूंगा मैं भी कहीं, तुम भी कहीं खाक के नीचे गुम होगे। कोई आगे कोई पीछे, पर एक दिन हम सब यार नजीर की बानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। नजीर एक बराबादी कहते थे, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। सच तो यही है। और ये जिंदगी है क्या? ये जिंदगी सर्कस है बाबू। शो 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन, दूसरा घंटा जवानी, तीसरा घंटा बुढ़ापा, उसके बाद तू नहीं, मैं नहीं, वो नहीं, ये नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता है। अगर कुछ रहता है तो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है। बिना चिड़िया का रैन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है।
तो क्या जरूरी है इस जिंदगी में? मैं जो उस वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहा था, जो मैं विशेष तौर पे आपके लिए लेके आया था, मैं कहना क्या चाह रहा था कि बचाना क्या है? रिश्ते बचाने हैं, सिर्फ रिश्ते। और हमने रिश्तों को ही बैक बर्नर पर रख दिया है। मैं देखता हूं भाई भाई में 10 साल से बोलचाल बंद है। अरे भाई, ऐसी कौन सी गलती कोई कर सकता है जो खुले मन से, बड़े दिल से माफ नहीं की जा सकती? गलती सिर्फ एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब। अगर किसी पन्ने पे स्याही गिर जाए, अगर किसी पन्ने पे दाग लग जाए, तो वो पन्ना फाड़ के फेंक दो, पूरी किताब फेंक देना कहां की समझदारी? अपनों का हाथ पकड़ के चलिए, फिर तजुर्बे से कह रहा हूं, अपनों का हाथ पकड़ के चलिए, दूसरों के पांव पकड़ने की नौबत जिंदगी भर नहीं आएगी। और रिश्तों की दुनिया में भी सबसे जरूरी कोई रिश्ता है, सबसे बड़ा कोई रिश्ता है, तो वो है मां का रिश्ता। रिश्तों की दुनिया में इससे छोटा, मां, इससे छोटा तो शब्द हो ही नहीं सकता। और मैं समझता हूं इससे बड़ा शब्द भी कोई और नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि सच में बड़ी ताकत होती है। मैं बताता हूं आपको, झूठ में भी बड़ी ताकत होती है, अगर वो झूठ मां ने बोला हो। मेरी मां एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी। मैं अर्ली 80s की बात कर रहा हूं आपसे, लेट 80s की, इनफैक्ट 86, 87 की। प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, 500 रुपए उनकी सैलरी हुआ करती थी। 300 रुपए मेरी पढ़ाई पे खर्च करती थी, 200 रुपए में पूरा घर चलाती थी, 2 साड़ियों में पूरा साल बिताती थी मेरी मां की। लेकिन एक बड़ी बुरी आदत थी और इससे मैं बहुत परेशान होता था कई बार। जब भी आसपास की महिलाएं किसी तीज त्योहार के लिए इकट्ठा हो, कभी भी कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, होली दिवाली, कभी भी, तो एक टेप रिकॉर्डर मम्मी का हमेशा शुरू हो जाए। अरे देखो, तुम्हारा दीपक भी अच्छा है, तुम्हारा ललित भी अच्छा है, तुम्हारा सुमित भी अच्छा है, तुम्हारा निक्कू भी अच्छा है, लेकिन पता है मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। मैं मन्नू। सबके जाने के बाद मैं कहता मम्मी आप इतना एम्बेरस करती हैं मुझे। ये जो दीपक है 95% मार्क्स आए हैं इसके, मेरे 65। ये जो निक्कू को आप बोल रही हैं किसी काम का नहीं है, मैंने कहा स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन है, मुझे 12th प्लेयर नहीं लेते, है ना? मां एक होती है, कुछ फर्क होता ही नहीं। तारीफ किए पड़ी है। कुछ दिनों तक तो मेरी बात मानती, मुझे एम्बेरसमेंट से बचाती, और फिर कोई तीज त्योहार, फिर कुछ लोग इकट्ठा हुए, फिर सबके बीच में बैठी, फिर वही मेरे मन्नू जैसा कोई नहीं। थक हार के एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी मां को ये झूठ बोलने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस झूठ को सच में बदलने की कोशिश तो कर सकता हूं। आज श्रीमती प्रेमा शुक्ला का ये मन्नू, ये मनोज मुंतशिर, जो आप जैसे बड़े लोगों के सामने खड़ा है, बोल पा रहा है, ये सिर्फ मेरी मां के बोले हुए एक झूठ का नतीजा है। और मैं आपको लाइफ का एक हैक दे रहा हूं, याद रखिएगा ये बात, ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी लगे कि ये हैक गलत है तो मुझे ट्विटर पे या इंस्टा पे बताइएगा। ये मेरा नंबर सर के पास है, आप इनसे मांग लीजिएगा, राज साहब से मांग लीजिएगा। जब कभी लाइफ में आपका आत्मविश्वास डोलने लगे कि जिंदगी यार वैसी नहीं रह गई, हम में वो बात नहीं रह गई जो कभी हुआ करती थी, इस चेहरे में वो नूर नहीं रहा, वो चमक नहीं रहा, तो घर के सारे शीशे उठा के फेंक दीजिएगा और खुद को मां की आंखों से देखिएगा। ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं 2 बुझती हुई आंखों का सूरज हूं। ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने मैं 2 बुझती हुई आंखों का सूरज हूं। चमकते चांद तारों को भी वो फीका बता देगी। मेरी मां से कभी पूछो मैं कितना खूबसूरत हूं। अपनी मां की आंखों से खुद को देखिए। दुनिया में कोई ग्रीक गॉड, इंद्रलोक का कोई देवता आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसी मां के लिए, जो कि मैं जब भी मौका मिलता है सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, शोज पे बोलता रहता हूं, इसी मां के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि हम कोई खराब बच्चे हैं, हम अपनी मां से प्यार नहीं करते, हम बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए और इसीलिए आप मुझे सुन रहे हैं, वरना उठ के चले गए होते आप। लेकिन रिमाइंडर ये है
कि वक्त निकालना हम भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत भाग दौड़ है। हम मां से कहते हैं, मां मैं तुझे प्यार तो बहुत करता हूं, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो समझ रही है ना, वो बेचारी क्या समझेगी और क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहां से लाएगी। मैं बताता हूं, कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो शरशैया पर भीष्म पितामह को मरने में हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं तो कितना दर्द होगा। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। आज आपके पास, मेरे पास, हमारे पास मां के लिए वक्त नहीं है, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पास वक्त बहुत होगा, मां नहीं होगी। क्या करोगे उस दिन? सबसे ज्यादा हम अगर किसी का फोन, और ये एक स्टडी है, ये मैंने कहीं पढ़ा थोड़े दिनों पहले की ये स्टडी है कि सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी का फोन हम इग्नोर करते हैं तो मां का फोन इग्नोर करते हैं। अरे मां ठीक है, खाना खा लिया है, मां बच्चा थोड़ी हूं, टाइम पे आ जाऊंगा घर। मां बार बार फोन करती हो, बिजी हूं, मीटिंग में हूं, बॉस के साथ हूं। मां कितना फोन करती है मां। सोचो क्या करोगे उस दिन, जिस दिन ये फोन आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्या करोगे जब अपनी फोन बुक से मां का नंबर हमेशा के लिए डिलीट करोगे ना? छाती फट जाएगी उस दिन, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। आई हैव टू हग यू सर, मैंने बहुत रुलाया आपको। शी इज वॉचिंग यू, शी इज ब्लेसिंग यू। जब सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। साल के एक दिन मदर्स डे आता है और हम एक बढ़िया सा कार्ड खरीद के, महंगा वाला कार्ड खरीद के, दो चार अच्छी अच्छी बातें लिख के, कभी इंटरनेट से निकाल के, कभी गूगल से निकाल के, और हम अपने कर्तव्यों की पूर्णाहुति मान लेते हैं कि भाई कर दिया। मां बुरा थोड़ी मानेगी, मां का दिल तो बहुत बड़ा है, एक कार्ड काफी है। मां का दिल ममता का मंदिर है, मां का दिल मोहब्बत का खजाना है, मां का दिल ये है, मां का दिल वो है। अरे छोड़ो ये बेकार की बातें। किसने देखा है मां का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे हैं। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां पकाते हुए 100 बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले। वही हाथ मुझे लिखना सिखाते हुए जिन पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी और मेरी शर्ट के बटन टाकते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी। वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है आज की दुनिया में तुम्हारा श्रवण कुमार होना, मां के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज है, रोज सोने से पहले एक बार वो हाथ चूम के सोना। मैंने सुना है लोगों को, कभी कभी जब हम बातें करते हैं तो बातों में जो अर्थ छुपे होते हैं हम उनकी गहराई में कभी सोचते ही नहीं। बहुत सारे मैंने अपने दोस्तों को सुना है, बड़े अभिमान से, बड़े गर्व से कहते हैं कि अरे सुनो, मेरी मां मेरे साथ रहती है। मैं कैसे बताऊं कि भाई आज तक दुनिया में कोई बेटा इतना बड़ा नहीं हो पाया कि मां को अपने साथ रख पाए। ये कहो कि तुम मां के साथ रहते हो। और अगर आपने अपने आलीशान घर में मां को एक बढ़िया सा वेल डेकोरेटेड रूम दे रखा है तो यह काफी नहीं है। ज्यादा इस बात पे इतराने की, खुश होने की जरूरत नहीं है। बधाई हो,
तुमने बहुत बड़ा घर ले लिया, आलीशान घर ले लिया, और उस घर में मां को एक अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोच के खुश हो कि जहां लोग मां को बरामदे में रखते हैं, तुमने कमरे में रखा है। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, शाबाश। लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो? कितना वक्त मां के साथ बिताते हो? आखिरी बार मां के साथ टीवी कब देखा था? उसे वो बेसिर पैर के चुटकुले कब सुनाए थे और बिना बात की बातों पर उसके साथ ठहाके कब लगाए थे? कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें कोख में रखा, 3 साल हथेलियों पर और जिंदगी भर दिल में, उसे कमरे में नहीं पलकों पे रखना मेरे दोस्त हमेशा। और जब कभी आप उस कमरे में जाएं जहां मां रहती हैं, जहां बाबूजी रहते हैं, तो एक बार अपनी कौशल्या के पैर छूने के बाद एक जोर का एक टाइट हग उस दशरथ को भी देना, उस हवाई चप्पल वाले हीरो को जिसकी कुर्बानियां, जिसके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारा वो बाप, हमारे वो पिता जो मुश्किलों के 2-4 समंदर हमारे लिए हर दिन पार कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हमने अपने पिता से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस ये लगता था कि बाबूजी हैं तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर आ जाएगी। हम सिर्फ फरमाइशें बताते थे पिताजी को, कभी उनसे उनकी सैलरी नहीं पूछते थे। किताबों में पढ़ा था, जितनी चादर उतना पांव फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। आपने भी किताबों में यही पढ़ा होगा, मैंने भी यही पढ़ा था कि जितनी चादर उतना पांव फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरे लिए दुनिया की हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी हुई, मेरे पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो मेरे पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते फिर नहीं पहन पाया जो मेरे पापा अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए लाते थे। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे, और वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट वो संडे को ओवरटाइम करके कमाया करते थे। अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो पापा ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। हम उस देश में हैं साथियों, जहां हमारा बूढ़ा बाप हमारी ताकत है। बगल में खड़ा हो जाता है तो लगता है कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हो जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। और सचमुच मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। साथियों, बहुत देर से आप मुझे सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि दिमाग की भी एक बैंडविड्थ होती है,
इस छलनी से बहुत कुछ छन जाता है। आज मेरी बोली हुई हर बात आप भूल जाएं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि इस दुनिया में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी ऊपर उठ जाएं, कितनी भी बुलंदियां देख लें, लेकिन जब बाबूजी ने पहली बार आपको गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊंचा कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए पिता से जब भी मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आदमी है। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा? मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के बोले मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा? और मां से जब भी मिलिएगा, अदब से मिलिएगा, झुक के मिलिएगा, क्योंकि आप उसके कर्जदार हैं। आप अपने बैंक में लाखों करोड़ों भर लें, लेकिन जो सिक्के उसने आपकी नजर उतार के गंगा में फेंक दिए थे, वो आप उसे कभी नहीं लौटा पाएंगे। हमेशा के लिए उसके कर्जदार रह जाएंगे। मां के आंचल से बड़ा आश्रय हमें परमात्मा भी नहीं दे सकता। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत 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 आभार आपका। थैंक यू। थैंक यू, कॉल मी अगेन। बहुत कुछ मेरे पास अभी और बोलने को है, अगली बार। नमस्ते, थैंक यू। मनोज जी, आपसे गुजारिश है मंच पर ही रहें। जी। आपकी माँ सही कहती है, मन्नू जैसा कोई नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको Thank सुनकर। you, sir. Thank you. और बात चाहे रिश्तों की हो, बात चाहे प्यार की हो, अधूरे प्यार की हो, टैक्स की हो, जीएसटी की हो, सब बातें हमारे दिल को छू गई। तो एक बार जोरदार तालियों से मनोज जी को जरूर बताइए। और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सीए चरणजोत सिंह नंदा जी को, सेंट्रल काउंसिल मेंबर आईसीआई। सर, what a wonderful grand finale we've had to the first ever edition of GloPack. Thank you for making it special. बैठिए। मनोज मुंतशिर शुक्ला, आपके दिल में ख्याल आएगा कि मुंतशिर के क्या मायने हैं। मुंतशिर का मतलब है बिखरा हुआ। जब इतना अजीम, बेहतरीन, काबिले तारीफ शख्स अपने आप को बिखरा कहता है, तो यकीन जानिए जब ये सिमट जाएगा तो क्या होगा। हाउ लवली। ये कहना चाहते हैं कि क्या चंद ही लम्हों में पढ़ लोगे मुझे? वाह। क्या चंद ही लम्हों में पढ़ लोगे मुझे? मैंने खुद को लिखने में बरसों लगाए हैं। क्या बात। 3 बातें धन्यवाद ज्ञापन में। पहली सबसे जरूरी बात, मां। मां से बेहतर, खूबसूरत, बेनजीर चीज इस कायनात में कोई नहीं है। कहती है ना, मां कुछ इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती थी, जब बहुत गुस्से में होती थी तो रो देती थी। मां हमारे साथ है, ये खुदा की दी हुई हमें रहमत है, परस्तिश है, दुआ है। जब मां चली जाती है तो कुछ नहीं बचता, सिर्फ उसके यादें बचती हैं और आप कुछ समझ नहीं पाते। दूसरी जरूरी बात, जज्बात। मैं आपको बड़ी शिद्दत से कहना चाहता हूं, इंसान को ड्राइव उसके जज्बात करते हैं। इफ यू डोंट हैव इमोशंस, यू आर नथिंग। शहीद भगत सिंह मौत के कागार पे थे, फांसी, उनको फरमान आ चुका था फांसी का, और उस रणबांकुरे ने, 22 साल के शख्सियत ने एक कोयले का टुकड़ा लिखा, उठाया और जेल की दीवार पे एक इबारत लिखी
क्या लिखा उस रणबांकुरे ने? कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम। वो लिखते हैं कि कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है, इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। और चलते चलते आखिरी बात, बहुत कम अल्फाजों में, जिंदगी में इन्होंने सिखाया कि जमीन पर रहने का ही फायदा है। कहते हैं ना, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद मुंशिर साहब, आपने इस महफिल में चार चांद लगा दिए। सर मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आप मेरे बाद आए, अगर पहले आते तो मुझे सुनते नहीं ये लोग। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप काबिल रश बोलते हैं, बहुत बेहतर बोलते हैं। बहुत देखिए जब आप बोल रहे थे पिन ड्रॉप साइलेंस तक, कोई अंदर नहीं कोई बाहर नहीं। लेकिन तालियां आपको मिली। आपको मिली साहब, मेरे तो साथ के मेरे भाई है इसलिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, बाकी तारीफों के काबिल आप हो। बहुत बढ़िया बोला। Thank you, sir. और मां के बाप के साथ जोड़ने का आपका जो सिलसिला जारी है, तमाम देश को इस पे गर्व है। शुक्रिया, Thank you. बहुत Thank बहुत you, शुक्रिया मेरी तरफ से भी, हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल की तरफ से, Thank you, और sir. तमाम साहिबान और हजरात जो यहाँ हाजिर हैं उन सब की Thank you. तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। Sir, Stay stay blessed. on. I request President Sir and CA Dr. Raj Chawla ji, please come to give a memento to Manoj Muntashir Shukla ji. President, Vice President, the entire Central Council member, please come for a group photograph as well. We are very proud आपका Thank you, sir. वाजपेयी को भी सुना है ना आपके वीडियो में। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू सर। the pride in our profession back, so thank you. My goodness, there is always so much of, already so much of pride. I just reminded it. Thank you sir, thank you sir, thank you. हमारे नंदा जी बोलते थे काउंसिल में, हाँ, thank you sir, thank you very much. I met such lovely people today. कैसे हैं राज जी? थैंक यू सर जी। हाँ बस ये ठीक है, ये मेरे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. So the traditional stroll being given by the President, Vice President to Manoj ji. His words will continue to inspire us for long. बहुत ही आनंद आया, आपके हर शब्द ने हम सबके दिल को छू लिया। बहुत बहुत आभार आपका। And as we conclude, well, we understand your love towards Manoj ji. Make sure that you do it with all love and affection.
Vice President, sir, we like to give a memento to CAM Devaraja Reddy, sir, as well. We like to give a memento to CAM Devaraja Reddy, sir. Reddy, sir, please come. अभी सर अभी वैल्यू फेलिसिट करना है ब्रांच चेयरमैन को, अपने कैसे खत्म करा दिया अहमदाबाद को। Yes, sir, please come. इसको मैं बोल देता हूँ फटाफट, है ना, मैं बोलता Can we get the memento for the Reddy, sir? Thank you so much, CA Devaraja Reddy, sir, past President ICI, for your opening remarks in this last session and for your presence. हाँ, तभी मैंने बोला। Thank you. And with that, I request Secretary ICI to say thank you to all the delegates who've made GloPack so special. Sir. धन्यवादों 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 भूरिश साधुवाद धन्यवाद ते सदैव भूरिश धन्यवंचासी धन्यवागे धन्यम वचनम धन्यम धन्यम धन्यवाद भूरिस्ते धन्यवाद। Thank you very much. Well done, and thank you always very much. Blessed are your words. Blessed are your words. Blessed. Thank you very much. With this, now we come to the conclusion of the biggest festival of accountancy in India, the GloPack 2023. I request our Honorable President ICAI, CA Aniket Sunil Talati ji, and Honorable Vice President CA Ranjit Kumar Agarwal ji to facilitate Chairman of Ahmedabad branch CA Anjali Choksi ji, and the Chairman of Gandhinagar branch CA Chintan Thakkar ji for their valued contribution to make this event a grand success. They have toiled very hard for the successful conduct of this GloPack 2023, and I hope we will be able to get the support and motivation from them in future as well. Now I invite CA Chintan Thakkar ji. Now I request Honorable President and Vice President to felicitate the Master of Ceremonies of the various technical sessions of this GloPack which were held during the last 3 days. So first I invite CA Amit Arora ji. CA Amit Arora. And they have tried all the MOCs, CA Amit Arora, CA Chavi Jain, CA Silva Shah, Miss Nidhi Tripathi, have tried their best to make all the technical sessions more and more live, interactive, and we have received good responses from all the audiences, all the delegates who were there. Okay, CA Chavi Jain is right now not present here, so now we can invite CA Silva Shah. We are very thankful to all these MOCs for making all these sessions interactive. Now I request Ms. Nidhi Tripathi to be ready because we like to also facilitate you, and a great good job was done by you and all the MOCs. I think all the MOCs deserve a huge round of applause.
because all the sections were live by them only. Now I would like to request our Honorable Vice President C. Ranjit Kumar Agarwal ji for his kind few words and the closing remarks. C. Ranjit Agarwal ji, Vice President ICAI. So please welcome with a huge round of applause. Thank you very much. This was the essence of our 2.5-day session. Mother and father. With these two names, the session was ended. और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब माँ एक छोटे बच्चे को उठाती है तो उसे कमर पे रखती है और कमर पे रख के वो सारा काम भी करती रहती है. द इंटेंशन बिहाइंड द मदर कि वो उसको सिखाती है कि मैं क्या कर रही हूं. लेकिन जब वही एक फादर एक छोटे बच्चे को उठाता है तो वो उसे कमर पर नहीं रखता, वो उसे कंधे पर बिठाता है. वो फादर ये कहता है कि जो मैं नहीं देख पाया वो तुमको देखना है. तुम्हारा विजन मेरे विजन से बड़ा होना चाहिए. आवर इंस्टीट्यूट, दिस इज द ICI प्लेइंग द डुअल रोल. Mother hand holding like a mother and vision like a father. And we all are indebted to our ICI, whatever we are today because of this ICI. We have structured this program on the line of World Congress of Accounting last year. Hopefully you may like, some deficiency might be there, but we will improve. And next year, you will see this program on the bigger canvas, on the bigger line. Thank you very much to all of you. Thank you. And my compliment to two very important persons. Of course, my president deserves a big round of applause. He is from Ahmedabad. He is from Gujarat. And he has brought entire ICI to the city of Gujarat. Thank you very much, President sir. I would like to call two important persons, Purushottam Khandelwal and Vishal Doshi. Please join on the dais. These are the two persons who has worked since last 2 months, uninterrupted, 24/7. Please give them a big round of applause. They are not sort of any memento or any utrio. They have given their 2 months of life to this institute to make this GLOPEC a grand success. Give them a big round of applause. And thank you all of you for coming in the large number. See you next year on the bigger canvas. Thank you.